صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بکی شریف کی سرزمین پہ جامع مسجد جلالی رضوی عقلانی میں 32واں افکار رضا سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا موضوع ہے تعظیم سادات۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کروڑوں سلام ہوں حافظ الحدیث جنید زماں امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کی روح مقدس کو۔ آپ نے مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کی شکل میں ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا کہ جس نے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے بلند کیے، اور ملت پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ نے قوم کو صحیح رستہ دکھایا۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بریلی شریف کی طرف متوجہ کیا، چونکہ آپ خود دورہ حدیث بریلی شریف سے پڑھ کے آئے، اسی لیے ہم اپنے اکابر کی تعلیمات کو جب اجاگر کرتے ہیں تو اس میں ایک پورا سلسلہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیقات کا سلسلہ ہے۔ ویسے تو ہم نے داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کشف المحجوب پر بھی ابھی چند دن پہلے 3 سیمینار عقائد گنج بخش کے نام سے کیے، اور اس کا خلاصہ یہ چھپ بھی چکا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج بڑے بڑے آستانوں کے لوگ بھٹک گئے، انہیں شیشہ ہم نے دکھایا کہ داتا صاحب کا یہ عقیدہ ہے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے، تو تم اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو۔ ایسے ہی ہم نے افکار مجدد الفسانی سیمینار کیا، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ مکتوبات شریف میں مجدد صاحب نے جب یہ لکھا ہے تو تم آج نئی ڈوز کیوں قوم کو دیتے ہو۔ اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ کے لحاظ سے تو ہم نے کافی دیر پہلے شروع کر لیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں 100 افکار رضا سیمینار انشاءاللہ منعقد کروں گا،
یعنی جدا جدا موضوعات پر کہ ہر بندہ تو اتنا وقت نہیں نکال سکتا کہ وہ فتاوی رضویہ شریف پڑھ کے سمجھ سکے. اس کے لیے 10-15 سال کم از کم پہلے پڑھنا پڑتا ہے علوم کو. جو علماء کو ہم کورس کراتے ہیں، اب اس وقت بھی ہم تخصص فی الفقہ والعقائد لاہور کرا رہے ہیں علماء کو جو دور حدیث سے فارغ ہیں، تو ایک عوام کو کورس کراتے ہیں. چونکہ ایمان کا سبق تو سب کے لیے ضروری ہے، عقیدہ بگڑ گیا تو کوئی چیز بھی فائدہ مند نہیں ہوگی. تو 31 سیمینار ہم نے اللہ کے فضل سے ملک بھر میں، جس میں کراچی میں کیے، لاہور میں، خیبر پختونخوا میں، اور یہ 32واں سیمینار ہم اسی سرزمین پہ کر رہے ہیں کہ جہاں کا یہ سارا فیض ہے اور جنہوں نے ہمیں بریلی شریف کی طرف متوجہ کیا ہے. سیمینار کا جو موضوع ہے وہ ہے تعظیم سادات. اس لیے میں آغاز میں اپنا بالکل تازہ کلام جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت میں نے لکھی اس سے بات کو شروع کرتا ہوں. مجھے ورثے میں آئی ہے ثنا خاتون جنت کی، بحمد اللہ ہے مجھ پہ بھی عطا خاتون جنت کی. دعا ہے یہ خدا سے مصطفیٰ کی شان کے صدقے، ہو میری نسلوں کو حاصل ضیاء خاتون جنت کی. جو ہیں اس عصر حاضر میں ہماری بیٹیاں بہنیں، ملے ان سب کو بھی شرم و حیا خاتون جنت کی. مریضوں دکھ کے ماروں کو شفا خاتون جنت کی. شہ لولاک کی دختر کی ہر جا پہ حکومت ہے، زمین و آسماں آب و ہوا خاتون جنت کی. خدایا شکر ہے تیرا کروڑوں بار روزانہ، ملی آصف کو گھٹی میں وفا خاتون جنت کی. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ اسلام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، صرف قرابت کے رشتہ کی محبت چاہتا ہوں اور گہری محبت چاہتا ہوں. اللہ کا فضل ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم شعار اہل سنت اور اہل سنت کی پہچان ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں کہتے ہیں کہ سنی ہونا اور محب اہل بیت ہونا یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. کوئی کہے تم کون ہو، تم جب کہتے ہو میں سنی ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، اور جب تم یہ کہو میں محب اہل بیت ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں سنی ہوں. کیونکہ جو شرعی محبت اہل بیت ہے وہ سوائے اہل سنت کے کہیں نظر نہیں آتی. حالات حاضرہ میں ایک فتنہ جو آج سے شروع نہیں ہوا، کئی سال پہلے سے شروع ہوا، اب اس فتنے نے کئی بچے نکال لیے ہیں. اور محبت اہل بیت جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہے اس سے ہٹ کر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک سیمپل پیش کیا جا رہا ہے. چونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو کچھ لوگوں کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کا رد کرنا پڑتا ہے کہ یہ محبت اہل بیت نہیں، یہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے. جب ہم رد کرتے ہیں تو پھر جوابی طور پر ہمیں گستاخ کہا جاتا ہے. اب اس خطرناک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں. اگر ہم ان کو کھل کھیلنے دیں کہ جو چاہو کہو تو پھر آخرت برباد ہوتی ہے، اور اگر ان کو روکیں تو پھر توہین کا فتویٰ لگتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے شریعت سے اپنا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے. باقی اگر کوئی نام نہاد فتویٰ لگاتا ہے تو کروڑوں بار لگائے، ہمیں فتوے کا بھار نہیں، ہمیں قرآن و سنت کا وقار پیش نظر ہے. اس بات کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، چونکہ اس وقت کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں قرار دے دیا گیا. مینار اونچا کتنا ہوتا ہے اور کنواں گہرا کتنا ہوتا ہے، ڈیفرنس اور فرق کتنا ہے. اور جب اس چیز پہ ضد کی جائے نہیں کنواں نہیں یہ مینار ہے اور مینار نہیں یہ کنواں ہے مان جاؤ، تو پھر جو حق
समझता हो वो तो कुएं को मीनार नहीं कह सकता और मीनार को कुआं नहीं कह सकता। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कोई जितना प्यार करे ईमान है, लेकिन उसके आगे एक बाउंड्री है। अगर उसको क्रॉस कर दिया जाए तो वो प्यार नहीं रहता, वो कुफ्र बन जाता है। मसलन आप कहते हैं अली 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 अली, करोड़ बार कहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब एक बार भी आप कहें अली अल्लाह माज़अल्लाह, तो फिर जो मोमिन है उस पे लाजिम है कि वो पकड़े कि अली अल्लाह नहीं, अल्लाह के एक अजीम बंदे का नाम है। झगड़ा आज ये चल रहा है। रवाफिज, उनके यहां जो मोहब्बत है शरीयत में, वो मोहब्बत नहीं, वो शरीयत से बगावत है, और वो दिन रात बयान करते हैं। फिर उनसे हमारे जाहिल खतीब सुनते हैं, जाहिल नात खान सुनते हैं। अब जाहिल का क्या रोना, मुनाज़िर इस्लाम जैसे भी सुन के फिसल जाते हैं। तो हमें अगर नहीं रोकते हम, दुनिया वाह करेगी। मैं ही वो शेख आसिफ जलाली हूं, दाता साहब के कदमों में खड़े होकर, जिसके बारे में यहां के पीर साहब ने जो नाज़िम आला हैं जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ के साबिक हुज्जतुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा था कि अशरफ आसिफ जलाली मेरा फिक्री कायद है, मेरा मुर्शिद है। आप नौजवान नहीं, आप हमारे शागिर्द नहीं, मैं आपको यह खिताब देता हूं कि ये नौजवान बुजुर्ग नौजवान है, जो बुजुर्गों का भी मुक्तदा इस वक्त बन सकता है। हम इसको फिक्री कायद मानते हैं, हम इसको फिक्री कायद मानते हैं। हमें फख्र है इसकी क़यादत पर। हम तहकीक के मैदानों में, हम नजरिया के मैदानों में ताक़ुब करेंगे और हम जंग लड़ेंगे। अल्बानी के जहरीले और मसमूम नजरियात का पूरी दुनिया में हम ताक़ुब करेंगे। और अली हुजवेरी के मिज़ार अक़दस की कसम, हम उस वक्त तक ये उलमा का जलाली काफिला चैन नहीं लेगा जब तक हम गुस्ताखाने रसूल के फितना को बेखौफ से उखाड़ कर फेंक नहीं देते। उस वक्त मेरा नसब भी पाक था, मेरी निस्बत भी पाक थी। ये अभी भी वीडियो क्लिप मौजूद है। और कहा था कि पंजाबी में कि छोड़ते अकलाने आई पर पूरी दुनिया तो अगे लग गया है। आखिर ये सारे लोग किस लिए खिलाफ हुए? इन्होंने कहा, लोग कुछ ये भी कहते हैं ना, यहां से पढ़े हो और यहां के खिलाफ बोलते हो, और अब उनकी बात क्यों नहीं मानते? मैं देहाती बंदों के लिए इतना कहता हूं, पंजाबी भी चलो सुन लो। एक बंदे ने दुहान नमाज याद कराई, दुहान नमाज नहीं होंगी किसी ने, उस बंदे दुहान पढ़ाई, फिर तरीका भी दसिया, फिर निताई, और तुसी ओदे दस्ते ते नीत लई। 1 साल 2 साल 4 साल 25 साल गुजर गए। मोहसिन ते यकीनन वो बंदा बड़ा है जिस दुहान नमाजी बनाया, लेकिन 25 साल तो बाद वह बंदा जो दुआन आखे, क्योंकि तू तो बेनमाजी है, मैं तेन नमाज पढ़ाई आई ना, तेन तो पता ही कोई ना, अलफ बे दा मैं पढ़ाया आई, तरीका तेन मैं दसिया आई, लिहाजा हुण मेरी मन, आज तो बाद लांदे मुंह करके नहीं पढ़नी, चढ़दे मुंह करके पढ़नी है। आज तो बाद कपड़े पा के नहीं, कपड़े ला के पढ़नी है। मैंने दसो क्या मन जाओ ते गल उसदी, तो बोलो तो सही। इससे भी बड़ा धांधला हुआ है आज। और मैं हाफिजुल हदीस के झंडे की बात बिला वजह नहीं करता। 1 साल पहले मैंने कहा था, आज दुनिया को वाकई मेरे हाथ में वो झंडा नजर आ रहा है। यकीनन जिनसे एक लफ्ज भी पड़ा हो बंदा उनका शुक्रगुजार होता है, एहसान फरामोश नहीं हो सकता। नमक हरामी करना ये बहुत मुसन्नत है इसकी, मगर ला ताता ले मखलूक फी मासियातिल खालिक, मखलूक को मनाने के लिए शरीयत की तरफ पुश्त कर देना और अल्लाह से बगावत कर जाना। पीर खाने का उस्ताद का मकाम करोड़ों दर्जे बाद में है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म करोड़ों बार पहले है। अब यहां मस्जिद अकलानी में मुहर्रम में महफिल होती है, हर जगह होती है ना। एक मौजू हर साल तुम सुनते आए हो,
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत की फजीलत बताते हुए तुम्हें ये बताया जाता रहा है आज तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात पहले नंबर पे अहले बैत हैं। क्योंकि कुरान बात ही पीछे अहले बैत की अज़वाज से आ रही है, पीछे जिक्र उनका है, बाद में जिक्र उनका इस आयत के बाद। हर जलसे में तुम्हें यह पकवाया गया कि पंजतन पाक जैसे अहले बैत हैं, यानी उनमें से वो मुकद्दस हस्तियां हसनैन करीमैन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसे ही बल्कि कानून के मुताबिक उनसे पहले कुरान कहता है, जहां भी अहल का जिक्र करता है इज़ क़ाला मूसा लिअहलिही, तो सबसे पहले बीवी का जिक्र होता है। क्या पढ़ा तुमने सारी जिंदगी के अज़वाज मुतहरात अहले बैत, सारे बोलो अहले बैत, अहले बैत। लेकिन अब सबक बदल गया है, हमारे पास वीडियो मौजूद है। तो मैं इस बारे में जरा वजाहत करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये अज़वाज मुतहरात का जिक्र है और ये सारे सीगे जो इस्तेमाल हुए हैं ये जमा मुअन्नस के सीगे, तो जमा मुअन्नस के सीगे हैं, तो ये इनसे मुराद अज़वाज मुतहरात हैं, लिहाजा आगे भी ये बात होनी चाहिए। लेकिन हजरात गिरामी, कुरान हकीम फुरकान हमीद का एक उसलूब बयान है, उसका एक तरीका है, अंदाज़ गुफ्तगू है। तो अंदाज़ गुफ्तगू ये है कि वो गुफ्तगू जा रही होती है और आगे से अचानक उसमें तब्दीली पैदा की जाती है। और ये बलागत की, इल्म बलागत की जो खूबियां हैं, उन खूबियों में से एक बात ये है, कुरान हकीम फुरकान हमीद में ऐसे कई मकामात हैं और उसमें इस चीज का बयान है कि एक जिक्र आ रहा है और आगे से उसका कलाम का रुख जो है वो दूसरी तरफ मुड़ गया है। तो यहां पर भी यही हुआ है कि अज़वाज मुतहरात का जिक्र आ रहा है और इसके बाद जो है बात अहले बैत की तरफ मुड़ गई। हजरत अली, हजरत फातिमा और हजरत हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तरफ मुड़ गई। वही जो इस मसले पे मुनाज़रे करते रहे, उनके बैठे हुए एक सुन्नीनुमा राफ़ज़ी कराची में तकरीर करके ये साबित कर रहा था कि इस आयत में अज़वाज मुतहरात नहीं है, वो अहले बैत में नहीं है। क्यों मुराज़मीन उस वक्त कि हमने तो इस पे मुनाज़रे किए, ये कुरान है, ये सुन्नत है, जो भी बोल रहा है उसकी जुबान पकड़ के उसे रोका जाता, मगर उसे दाद दी गई और कहा गया इसकी किताबें पढ़ो, बड़ा अच्छा मुहक्किक है। तुम सारी जिंदगी ये सबक पढ़ते आए हो कि अंबिया के बाद अलैहिमुस्सलाम सारी इंसानियत में पहला दर्जा, पहला नंबर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। दसो पढ़िया या नहीं पढ़िया? तो हुण जिहदे कोल जा बैठे, जिहदे कदमां विच अब्दुल कादिर शाह, वो आदा ये अकीदा ते कती है ही नहीं, ये अकीदा ते इजमाई है ही नहीं। ये मसला जो है ज़न्नी है, कती नहीं है। जो कती कती कहते फिरते हैं, तासुब से कहते फिरते हैं, साबित नहीं कर सके। 14 सदियां इहो अकीदा रहा, हाफिजुल हदीस दा इहो अकीदा रहा, दाता साहब दा इहो अकीदा रहा, खाजा साहब दा इहो अकीदा रहा, इमाम बुखारी दा इहो अकीदा रहा कि नबियों तो बाद सारे इंसानां विचों पहला नंबर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अभी आप नारा लगा रहे थे, नारा तहकीक हक चारिया, ये हमेशा से लगाते आ रहे हो ना, ये हमारा ईमान है। जो शख्स इस नारे को कहे, जो ये लगाता है वो नासबी है। जो नारा तहकीक हक चारिया लगाए वो खारजी है, वो जहन्नमी है, माज़अल्लाह। लोगों ने अब नारा तहकीक निकाला है, ये गलतफहमी है और बदफहमी है। तहकीक शकीक कुछ नहीं, वो नारा तहकीक है और कहते हैं हक चारिया। अब कोई मोटा पतला अगला पिछला अपना पुराना कोई भी अगर नारा तहकीक की हिमायत की कोशिश करे या लगाने की कोशिश करे तो एक बात याद रखो, वो सुन्नी नहीं है। बोलो बोलो कौन है वो? खारजी। और खारजियों में भी एक खास नस्ल है जिसको नासबी कहा जाता है। वो नासबी, तो खारजियों और नासबियों से बचो। क्या आप बचने का वादा करते हैं?
उनको अपना इमाम नहीं बनाना, उनके पीछे जनाजे बर्बाद नहीं करने, उनसे अपने बच्चों का निकाह खराब नहीं कराना। उससे जुब्बा ले और उसको कहे कि ये पीर तरीक़त है, रहबर शरीयत है। ज़ाती तौर पर मैं उनकी इल्मी और रूहानी वजाहत का मोतरिफ हूँ, इल्मी और रूहानी वजाहत का मोतरिफ हूँ। दुआ है अल्लाह ताला इस सिलसिला फैज़ को ता क़यामत और बाद क़यामत भी जारी सारी रखे। तो यही नहीं पता चला कि पहले ये था कि किबले की तरफ मुंह करो और अब दूसरी तरफ मुंह करो। हक चार यार, अगर कल बरहक था तो आज भी बरहक है, और इसका मुनकर अगर कल रफ्जी था तो आज भी रफ्जी है। तो वो महमूद शाह हवेलियां वाला, जिसका अगले दिन मैंने ऑपरेशन किया है, वो कहता है कि हक चार यार कहना यह नस्बियों की अलामत है, सुन्नियों की नहीं। उसका बेटा कहता है, और जो आज जाके कहे कि सैयद साहब हैं, जो भी कहें कोई बात नहीं, तो पता चला ये सियादत की एक नई डेफिनेशन हो रही है। बिक्की शरीफ के लोगों, पंजाबी में कहते हो लंदे भी शानेन, तुसी कदी एनन अदब एहतराम ओइंदा दिता जिकन दा ओना पीरन पेंदे हो। तो सैयद तेरी अखवाम ने सियादत की बड़ी ताजीम है, बड़ी ताजीम है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, अगर वो बेअमल भी हो जाए फिर भी अदब करते रहो, फिर भी करते रहो। यहां तक कि अगर अकीदे में गड़बड़ हो मगर कुफर तक ना हो फिर भी अदब करते ही रहो। लेकिन जिस वक्त सैयद के अकीदे में कुफर आ जाए तो आला हजरत ने लिखा अब सैयद का सैयद होना खत्म हो जाता है। आला हजरत ने लिखा, अभी पढ़ के सुनाता हूं, और आला हजरत ने अपने पास से नहीं लिखा, आला हजरत ने अल्लाह के कुरान की आयत से लिखा। तफजीलियत तक गुमराही है, तफजीलियत तक। तफजीलियत क्या है कि कोई बंदा हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल समझता है, गुमराह है, काफिर नहीं। इसको कहेंगे बंदा तफजीली हो गया है। और अगर सैयद था और तफजीली हो गया है तो इतने में अब हम उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर देंगे, कुछ उसका लिहाज रखेंगे। लेकिन सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम में से किसी एक पर जो तान करे, जुबान दराजी करे, किसी एक को भी, तो वो तफजीली नहीं रहता, वो फिर राफजी बन जाता है। वो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? और जो राफजी है उस पर कुफर का फतवा है। और जब कुफर हो तो फिर ईमान कहाँ रह गया? और जब ईमान ना हो तो सियादत तो मिलती ईमान से है, सियादत तो मिलती ही। अब देखो, मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने ये बात रखता हूं क्योंकि टाइम भी थोड़ा है और मौजू तो कई घंटों का है, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा बताना है। यह है फतावा रिजविया शरीफ, जिल्द नंबर 29। हमने यह नाम यही से सुना, बिक्की शरीफ से, हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से। इसके अंदर एक सवाल पूछा गया और उस सवाल का जवाब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जो आला हजरत ने लिखा, खुदा की कसम अलल ऐलान बोलने वालों में उस पर मैं बोल रहा हूं। बड़े बड़े इस ताने से फिसल गए कि हमें तो गुस्ताखी अहले बैत में कहा जाएगा, हमें तो पूरा सैयदी को नहीं मानेगा। इन तूफानों के मुकाबले में मैंने कहा, जो इमाम अहमद रजा को आगे से सीधा होके आएगा हम उसकी धजियां उड़ाएंगे। कोई पीर है तो अपने घर है, अगर इमाम अहमद रजा बरेलवी से टकराएगा तो फिर उसे ही यूं ही होगा जैसे दाता साहब पे हुआ है। सवाल, क्या सैयद पर दोज़ख की आंच कतन हराम है और वो किसी बदआमाली की पादाश में दोज़ख में जा ही नहीं सकेगा? ये फतावा रिजविया शरीफ 638 सफा 638। दूसरा सवाल इसी से मिलता जुलता है, मैं जवाब पढ़ के सुनाता हूं आपको। अल जवाब 639 सफा। साइल ने पूछा, सैयद का कोई भी मशरब हो, सैयद हो तो उसको आगे छुट्टी है, जन्नत में चला जाएगा। मिसाल सुन लो,
चलो सैयद ने माजल्ला चोरी कर ली, मगर दीन की नहीं, दुनिया के लिहाज से ये मामला और है। लेकिन सैयद जब दीन पे हमला करे तो फिर सैयद की सआदत खत्म हो जाती है। अब सैयद तो वो भी था जिसको सर सैयद अहमद खान कहते हो, लेकिन इमाम अहमद रजा ने उसको सैयद नहीं लिखा, अपनी किताब में अहमद कुल्ली लिखा है। सैयद तो लाल शाह भी कहलवाता था कादियानी, तो क्या अदब बाकी रह गया कादियानी होने से? आला हजरत का लफ्ज सैयद कोई मशरब रखता हो, ये लफ्ज तो बहुत वसी है कि शायद तुम पूछते हो सैयद मशरब कोई भी हो, यानी मसलक कोई भी हो। आप फरमाते हैं आजकल बहुत मशरब ऐसे भी हैं जो सरी कुफर व इर्तिदाद के हैं, यानी बहुत मसलक ऐसे भी हैं, उस मसलक पे बंदा जाए तो मुर्तद हो जाता है, उस मसलक पे जाए तो फिर काफिर हो जाता है। कैसे? जैसे कादियानी नंबर 1, नेचरी, ये सर सैयद अहमद खान का मजहब है जिसको आला अहमद कुल्ली लिखते हैं। राफिजी क्या बोला? यानी जो मजहब इख्तियार करना कुफर और इर्तिदाद है, अगर सैयद इस मजहब पे जाता है, रफ्जी बन जाता है, तो आला हजरत कहते हैं अब सियादत उसकी खत्म हो गई है, सियादत उसकी खत्म। ऐसे ही कहा वहाबी, चकड़ालवी, देवबंदी जो मशरब रखता हो, हरगिज हरगिज सैयद नहीं, हरगिज सैयद, हरगिज सैयद, हरगिज सैयद। ये इमाम अहमद रजा अभी जाके जामे मोहम्मदिया नूरिया रिजविया, रिजविया कहा इसको इसलिए जाता है कि मेरे अफजल हदीस ने कहा था क़यामत तक इस दरसगाह की एक एक ईंट फतावा रिजविया सुनाएगी, और जो फतावा रिजविया से हटेगा अगरचे बेटा ही क्यों ना हो, वो इसमें बैठने का हकदार नहीं होगा। कहा कि जब सैयद बन जाए राफजी तो सैयद नहीं रहता। आला हजरत ने कहा बोलो सैयद, सैयद